Good afternoon, everyone. In the previous class, we had discussed various headings and subheadings of balance sheet of a company, and we were doing illustrations to see where various items are categorized in a company's balance sheet. One illustration we had done. The second one we were doing. Let's complete that first. Is this screen visible? Yes, sir. Up to here we had done, I suppose, है ना? Unclaimed dividend तक. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. अब इसके आगे करते हैं. दिया, नेक्स्ट क्या है पढ़ो. Areas of fixed cumulative dividend. मतलब क्या हुआ इसका? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स तो जो डिविडेंड हमें पे करना है. यस, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स याद है, जिन पे डिविडेंड एक्यूमुलेट होता रहता है. अगर किसी साल लॉस की वजह से या प्रॉफिट ना होने की वजह से डिविडेंड नहीं दिया, देन डिविडेंड कीप्स एक्यूमुलेटिंग. फ्यूचर में जिस भी ईयर में प्रॉफिट होगा तो वो पिछले ईयर्स का डिविडेंड भी जो उन्हें नहीं मिला था वो दे दिया जाएगा. ठीक है. सो दैट इज एरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड. नाउ टेल मी वेयर शुड दिस बी शोन. करंट लायबिलिटी. ये कब दिया जाएगा? अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो. सो इट इज डिपेंडेंट ऑन अ सिचुएशन. कंटिंजेंट लायबिलिटी. कंटिंजेंट लायबिलिटीज में आएगा. यस सर. तान्या, नेक्स्ट. Bills payable. Sir, current liabilities, trade payables. Very good. Current liabilities, trade payables. Yes sir. Diya, next. Bills receivable, current assets, trade receivables. Very good. Yes sir. Sanya, next. Debentures. Sir, debentures, non-current liability. Yes, if nothing is specified, then non-current liabilities, long-term borrowings. Okay, sir. Yes sir. Diya, next. Stores and spares, current asset inventories. Excellent. Current assets, inventories. Yes sir. Sanya. Balances with banks, sir, current asset, cash and cash equivalent. Very good. Current assets, cash and cash equivalents. Yes sir. Diya, next. Mining rights, non-current asset, fixed asset, intangible asset. Excellent. Yes. Non-current assets, fixed assets, intangible assets.
Yes, sir. Sanya, next. Interest accrued and due on debentures. सर तो इससे हम करंट लायबिलिटीज करेंगे. Yes, very good. Current liabilities और सब हेडिंग क्या होगी? Other Other current current liabilities. liabilities. Yes, very good. Yes, sir. Next year. Interest accrued but not due on borrowings. No. ये भी शायद current liabilities. Yes, same. Current liabilities, other current liabilities. Yes, sir. Sanya, next. Accrued income. Sir, current asset, other current asset. Excellent. Yes, sir. Next year. Loose tools, current asset, inventories. Very good. Yes, sir. Sanya, next. Debenture redemption reserve. Sir, ये होगा long term. Sir, shareholders fund. Yes. और reserve and surplus. Very good. Yes, sir. Dia, next. Goodwill, Hmm. non-current asset, fixed asset, intangible asset. Very good. Non-current assets, fixed assets, intangible assets. अब एक्सपर्ट हो गए हो तुम लोग इसमें. Yes, Sanya, sir. next. Yes, sir. Vehicles. Sir, non-current asset, fixed asset, tangible asset. Yes, absolutely right. Yes, sir. Dia, last one. Provision for expense, current liability, and short-term provisions. Good. Current liabilities, short-term provisions. Yes, sir. Done. Any doubt in these? No, sir. Okay. Now we have understood the headings and subheadings of a company's balance sheet. So now we come to format of statement of profit loss of a company as per Schedule 3 Part 2. Statement of profit and loss of dash for the year ended dash. ठीक है, ये बना लो फॉर्मेट साथ साथ. Particulars, note number, amount rupees. करंट ईयर, प्रीवियस ईयर. फॉर्मेट बैलेंस शीट के जैसा ही है, हेडिंग सब हेडिंग्स, सिर्फ हेडिंग का फर्क है. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डैश फॉर द ईयर एंडेड डैश. सब हेडिंग सेम है. इसका फॉर्मेट बना लो एक.
फुल पेज का, और फॉर्मेट बना के बताओ, फिर एक एक आइटम इसके अंदर डिस्कस करते हैं, साथ साथ लिखते जाना। यस सर, बना लिया। ओके, इसमें स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट आइटम जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस ध्यान हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे होता था नेट सेल्स, बाय सेल्स, है ना। तो वो अमाउंट यहाँ पे स्टार्टिंग वहां से है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है? एक ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए सेल्स उनका मेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ। सो फर्स्ट आइटम इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये लिखते जाओ साथ साथ जो डिस्कस करते जा रहे हैं पर्टिकुलर्स। यस सर। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जो और इनकम्स एंड गेन्स होते थे, जैसे रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, गेन ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, वो सारे कहलाते हैं अब इसमें अदर इनकम, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ऐड किए जाते हैं। सो सेकंड हेडिंग इज अदर इनकम। यस सर। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ जाता है थर्ड हेडिंग, टोटल रेवेन्यू, यानी ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड का टोटल आप कह सकते हो, सेल्स और बाकी सब इनकम्स गेन्स का टोटल, टोटल रेवेन्यू। यस सर। ठीक है, अमाउंट कॉलम में हम टोटल रेवेन्यू के ऊपर सिंगल लाइन डाल देते हैं, नीचे डबल लाइन। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट मेन हेडिंग आती है एक्सपेंसेस, फोर्थ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंडर फिर सब हेडिंग्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए होगा कि जितना उनका मटेरियल कंज्यूम हो गया प्रोडक्शन प्रोसेस में, रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हो गया। यस सर। देन परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अगर ट्रेडिंग फर्म है तो जितने गुड्स उन्होंने खरीदे बेचने के लिए, दैट एक्सपेंस विल कम ओवर हियर इन दिस सब हेडिंग, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। यस सर। और अगर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों का काम है कंपनी का, तो फिर ये दोनों सब हेडिंग्स आएंगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड भी। थर्ड सब हेडिंग अंडर एक्सपेंसेस इज चेंजेस इन इन्वेंटरीज of finished goods, work in progress and stock in trade. मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों का कवर हो गए इसमें। मैन्युफैक्चरिंग के केस में फिनिश्ड गुड्स होंगे, वर्क इन प्रोग्रेस होगा, ट्रेडिंग के केस में स्टॉक इन ट्रेड होगा। यस सर। सपोज ईयर के बिगिनिंग में इन्वेंट्री थी 20,000 और ईयर के एंड में है 26,000, तो चेंज इन इन्वेंट्री में कितना आएगा? 6,000। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। नहीं, नेगेटिव। जनरली जब हम कहते हैं कि 20 से 26 हो गई मतलब 6,000 बढ़ गई, तो हमें लगता है पॉजिटिव। लेकिन ये जो फॉर्मेट दिया गया है कंपनीज एक्ट में, इसके अकॉर्डिंगली यहां पर आएगा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मतलब 20 माइनस 26 जो एग्जांपल हमने लिया, तो ये नेगेटिव 6,000 आएगा। और जब भी कोई नेगेटिव अमाउंट होगा तो वो ब्रैकेट्स में डाल दिया जाएगा। ठीक है, अमाउंट कॉलम में उसे लिख के ब्रैकेट्स में डाल देंगे। इज इट क्लियर? यस सर। यस। क्यों ऐसा है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग? क्योंकि अगर आप ध्यान दो, हम एक्सपेंसेस साइड, एक्सपेंसेस की डिटेल लिख रहे हैं, तो एक्सपेंसेस में अगर आपको ध्यान हो, परचेज वाली साइड पे ही ओपनिंग स्टॉक होता था ट्रेडिंग में, है ना। यस सर। तो ट्रेडिंग अकाउंट की जब हम क्लोजिंग करते हैं तो ओपनिंग स्टॉक परचेज में ऐड हो जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि ऑपोजिट साइड पे होता है तो वो लेस होता है,
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला अगर ध्यान दो तो आप परचेज नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, रिमेंबर? यस सर। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ये है कि ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा, ठीक है? सो दिस इज, ब्रैकेट में लिख लो यहां पर ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। Then next subheading in expenses is employee benefit expenses. इसमें सैलरीज, बोनस, कुछ भी हमने एम्प्लॉइज पे खर्चा किया है तो वो इसमें आ जाएगा, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरीज, वेजेस, बोनस वगैरह सब। ओके सर। देन फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट पेड, शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस, जो हम करते थे ना एक्सपेंस ऑन इशू, वो सब आ जाता है हमारा फाइनेंस कॉस्ट में। अगर हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को राइट ऑफ कर रहे हैं वो फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा। अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं डिवेंचर्स पे तो वो फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा, या लोन पे। यस सर। देन डेप्रिसिएशन एंड amortization expenses. What is the difference between depreciation and amortization? सर डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे होती है, एमोर्टाइजेशन शायद गुडविल की वैल्यू कम होने पे होती है। वो भी तो फिक्स्ड ही होते हैं सर एमोर्टाइजेशन मतलब इंक्रीज? नहीं, वो तो एप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन थोड़ा सा तुम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हो, पर एग्जैक्ट टर्म्स क्या है? डेप्रिसिएशन इज ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, amortization term is used on in case of intangible fixed assets, ठीक है? ओके सर। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस जो किसी भी सब हेडिंग में कवर नहीं हुए वो सारे अदर एक्सपेंसेस में, जैसे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, चैरिटी, ठीक है, सेल्स प्रमोशन, ये सारे अदर एक्सपेंसेस में डल जाएंगे और जो भी होंगे। यस सर। इसके बाद आता है टोटल एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस के सब हेडिंग है उनका टोटल कर देते हैं और उसे लिखते हैं टोटल एक्सपेंसेस। अमाउंट कॉलम में इसके ऊपर अगेन सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन। यस सर। थर्ड हमारा हेडिंग क्या थी? टोटल रेवेन्यू। और फोर्थ हेडिंग क्या थी? एक्सपेंस, जिसका टोटल अब आ गया। तो 3 - 4 करेंगे, रेवेन्यूज में से एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट, वेरी गुड। सो फिफ्थ हेडिंग इज प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। ब्रैकेट में लिख लो 3 - 4। सर एक्सेप्शनल आइटम कौन सी? करेंगे डिस्कस अभी बाद में, लिख लो अभी पहले। यस सर। फिर इसमें से 6 इज एक्सेप्शनल आइटम्स को हम लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। अब देखो पहले जो हेडिंग थी प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, टैक्स, उसमें से एक्सेप्शनल आइटम लेस हो गई है तो एक्सेप्शनल आइटम वर्ड्स हट गए। अब रह गया प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। 5 - 6। यस सर। फिर अब इसमें से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी लेस कर देंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 7 नंबर पे, सॉरी 8 नंबर पे। तो अब हमारे पास आ जाएगा इसके बाद 9th पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ऊपर वाली टर्म्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स वर्ड भी चले गए क्योंकि वो लेस हो गई हैं, तो रह गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7 - 8 ब्रैकेट में।
Yes, sir. अब इसमें से टैक्स भी लेस कर देंगे 10th नंबर पे, करेंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। तो हमारे पास बच जाएगा प्रॉफिट या लॉस ऑफ द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ब्रैकेट में 9 - 10। पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट, नेगेटिव आएगा तो लॉस। नेगेटिव आएगा तो अमाउंट कॉलम में ब्रैकेट्स में डाल देंगे फिगर को। Yes, sir. कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस मतलब जो ऑपरेशंस अभी कंपनी कंटिन्यू कर रही है। कोई ऐसे भी ऑपरेशन हो सकते हैं, हो सकता है इस साल कंपनी ने बंद कर दी हो थोड़ा टाइम करके, तो दोज विल बी कॉल्ड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, जो कंपनी ने बंद कर दी हैं इस ड्यूरिंग दिस ईयर। तो नेक्स्ट इज प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। जो डिसकंटिन्यू कर दिए लेकिन जितना टाइम किए उनमें कुछ अगर प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ है वो इस हेडिंग में शो होगा। Okay, sir. Then next is tax expense of discontinuing operations. Yes, sir. Then 14th is profit or loss from discontinuing operations after tax, 12 - 13. Yes, sir. फिर 15th नंबर पे आएगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, मतलब कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन दोनों के प्रॉफिट या लॉस को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस आ जाएगा हमारे पास। प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड 11 + 14। 11 क्या था? कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से जो प्रॉफिट लॉस था, और 14 क्या है? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, दोनों का टोटल। देन 16th इज अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर। इसके दो सब पॉइंट होते हैं, बेसिक एंड डाइल्यूटेड। बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो इससे आ जाएगा कि प्रॉफिट तो मतलब ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, उसे हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा पर शेयर कितना प्रॉफिट है। Yes, sir. और डाइल्यूटेड वाले में हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ व्हाट? नॉट ओनली इक्विटी शेयर्स बट ऑल्सो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऑल्सो कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। क्योंकि वो प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर जो कन्वर्टिबल हैं वो फ्यूचर में अगर कन्वर्ट हो गए इक्विटी शेयर्स में तो उनमें भी फिर प्रॉफिट बटेगा डिविडेंड की फॉर्म में। तो डाइल्यूटेड वाले में नंबर ऑफ डिनोमिनेटर में उन्हें भी इंक्लूड कर लेते हैं। Yes, sir. ठीक है, अब ये सारी हेडिंग सब हेडिंग्स को जरा थोड़ा थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते जाते हैं। फर्स्ट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इट इज अर्न्ड फ्रॉम मेन एंड रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, अगर कोई कंपनी गुड्स बेच रही है तो उसके लिए नेट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा, मतलब सेल माइनस सेल रिटर्न। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ऑलवेज नेट, ये याद रखना। मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह रहे हैं तो मतलब सेल रिटर्न लेस करने के बाद नेट सेल्स इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर कोई कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जैसे स्कूल है, तो स्कूल के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हुआ? फीस, व्हाटएवर चार्जेस दे आर चार्जिंग। एक होटल के लिए क्या हो जाएगा मेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस? रेंट रिसीव, जो वो रूम्स का रेंट चार्ज कर रहे हैं। क्लियर? Yes, sir. फिर अदर इनकम इंक्लूड्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स। फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव,
dividend received, gain on sale of asset, bad debts recovered, etc. Then cost of सर अगर material. हाँ बोलो. सर अगर चैरिटी और डोनेशन वगैरह मिल रही है तो वो अदर इनकम में आएगी. चैरिटी और डोनेशन कंपनी को क्यों मिलेगी? वो तो एनपीओ को मिलती है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, वेलफेयर वाले जो होते हैं. ठीक है. बट कंपनी फॉर्म सर स्कूल, ऑफ. कई स्कूलों में भी तो होती है. हाँ, लेकिन स्कूल्स कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में नहीं होते ना. स्कूल्स एनपीओ होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. दे आर रन एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ट्रस्ट. वो कंपनी के फॉर्म में नहीं रन होते. स्कूल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की फॉर्म में रन होते हैं. ओके सर. ठीक है. कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड क्या होता है? नेट परचेजेस. किसकी नेट परचेजेस? रॉ मटेरियल्स की. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम किस केस में होगा? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में. ठीक है. इसका फॉर्मूला लिख लो. नेट परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. यस सर. ठीक है. इसीलिए अगर आप ध्यान दो, जब चेंज इन इन्वेंट्री की बात आई थी तो उसमें फिनिश्ड गुड्स लिया था, वर्क इन प्रोग्रेस लिया था, स्टॉक इन ट्रेड लिया था, लेकिन रॉ मटेरियल का चेंज इन इन्वेंट्री नहीं लिया था. क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो पहले ही कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड में आ चुका क्योंकि वो होता है. ठीक है. बिकॉज कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में वो पहले ही एडजस्ट हो चुका होता है. Then purchases of stock in trade are in case of trading business. Employee benefit expenses include wages, salaries, bonus, staff welfare expenses, etc. फाइनेंस कॉस्ट भी हमने डिस्कस किया था. incurred on borrowings, for example interest, loan processing fees, shares or debenture issue expenses, etc. Yes, sir. ठीक है. अब आपने बीच में एक क्वेश्चन पूछा था एक्सेप्शनल आइटम्स. एक्सेप्शनल आइटम्स आर विच आर नॉन रूटीन आइटम्स ऑफ अ बिजनेस. की मतलब जनरली जो बिजनेस जिस तरह का काम करता नहीं है, पर आउट ऑफ द वे कोई इस तरह का काम कर लिया जिसमें प्रॉफिट हो गया, जिसमें कुछ रेवेन्यू आ गया, कुछ एक्सपेंस हो गए, तो दोज आर कॉल्ड एक्सेप्शनल आइटम्स. ठीक है. Yes, sir. एनी डाउट अप टू हियर? सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के फॉर्मूले में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी प्लस होंगे? नहीं होंगे. डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? वेजेस. वेजेस चला जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में. ठीक है. कैरेज इनवर्ड होता है, फ्रेट इनवर्ड होता है, वो चले जाएंगे अदर एक्सपेंसेस में. ठीक है. इसमें सिर्फ ओके सर. इसमें सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, यानी नेट परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ओके सर. ठीक है. अब ये चैप्टर कंप्लीट है. इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप होमवर्क में कर लोगे. ओके. सर एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या डिफरेंस होगा? एक्सेप्शनल हो गई कि इसको आप थोड़ा नेट पे सर्च करना एग्जैक्ट उसके लिए, और मुझे भी बताना. जो थोड़ा सा आइडिया मुझे है वो मैं आपको बता रहा हूँ. एक्सेप्शनल मतलब जैसे सपोज आपका एक रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट से जो आपकी एक्सपेंसेस रेवेन्यू है वो तो आपकी रेगुलर इनकम हो गई. ठीक है. दिवाली सीजन में आपने गिफ्ट आइटम्स भी लगा लिए रेस्टोरेंट के बाहर, तो ये हो सकता है आपकी एक्सेप्शनल आइटम्स. एक्सेप्शनल हो गई कि मेन रूटीन में नहीं आप रखते हो, कुछ दिन के लिए रख लिया. और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा जो बिल्कुल ही बिजनेस से रिलेटेड, आपके बिजनेस ऑपरेशन से बहुत ज्यादा अनरिलेटेड है. जैसे कोई गुड्स का लॉस हो गया और इंश्योरेंस क्लेम मिल गया उसके लिए, तो वो जो इंश्योरेंस क्लेम मिला वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसीट हो गई आपके लिए. ठीक है.
Okay, sir. Now we move on to the next chapter, that is analysis of financial statements. What do we mean by analysis? किसी भी चीज का हम एनालिसिस करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है एनालिसिस का? सर मतलब स्टडी करना, उसको देखना, उसे डिटेल में स्टडी करना, उसके सब पार्ट्स को डिटेल में स्टडी करना. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, write down, financial statement analysis is the critical evaluation. Critical मतलब pros and cons दोनों उसके, positive points भी negative भी. Critical evaluation of financial information contained in financial statements of a firm to understand and take decisions regarding its operational efficiency, profitability, solvency, and future prospects. जब हम किसी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं डिटेल में, समझने के लिए कि कितना एफिशिएंटली काम हो रहा है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, सॉल्वेंसी कैसी है, एंड सो ऑन. रिटन? Yes, sir. Yes, sir. जनरली दो वर्ड्स हैं, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, जिसमें कई बार कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को. इनका डिफरेंस समझ लेते हैं. एनालिसिस इन्वॉल्व सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेटा बाय मेथोडिकल क्लासिफिकेशन. कुछ कैलकुलेशंस करके स्टडी करना इंफॉर्मेशन को, डेटा को, दैट इज एनालिसिस. और उस एनालिसिस के बेसिस पर कंक्लूजन्स निकालना या एक्सप्लेन करना क्या रिजल्ट्स आए, दैट इज इंटरप्रिटेशन. सो इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व्स explaining the meaning and significance of analyzed data. ये भी लिख लो. Yes, sir. अब आप बुक से पढ़ोगे सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. ठीक है, ये पढ़ के इजीली आपको समझ में आ जाएगा. कहीं कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना फिर वो. ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. Now, what is the need of financial statement analysis? जरूरत क्या है? हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली, प्रॉफिट लॉस पता चल गया, फाइनेंशियल पोजीशन पता चल गई, फर्दर उसको एनालाइज करने की क्या जरूरत है? वो जरूरत समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू. कंपनी ए अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 lakh, कंपनी बी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 lakh. टेल मी विच कंपनी हैज बेटर प्रॉफिटेबिलिटी? कंपनी बी. सभी. कंपनी बी है ना, यही लग रहा है. अब एडिशनल इंफॉर्मेशन थोड़ी सी इसमें देखते हैं. कंपनी ए हैड अ कैपिटल ऑफ 5 lakh, कंपनी बी हैड अ कैपिटल ऑफ 20 lakh. Now what do you say? Which company has better profitability? सर ए. क्यों? क्योंकि उन्होंने 1 लाख रुपए कमाए हैं 5 लाख की कैपिटल पे, यानी 20%. जबकि कंपनी बी ने 2 लाख कमाए हैं 20 लाख पे, विच इज ओनली 10%. सो नाउ वी रियलाइज कंपनी ए हैज बेटर प्रॉफिटेबिलिटी. तो ये हमने क्या किया, ये जो परसेंटेज निकाली, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हो गया एनालिसिस. अगर हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस देखेंगे दोनों कंपनी का, तो हमें लगेगा कंपनी बी बेटर है क्योंकि उसका प्रॉफिट ज्यादा है. लेकिन जैसे ही हम उसकी बैलेंस शीट भी उठाएंगे और प्रॉफिट को कैपिटल की परसेंटेज में निकालेंगे, तो हमें पता चला कंपनी ए बेटर है.
This is the need for analysis. Clear? Yes, sir. Single absolute figure may be misleading, but when we study it in relation with another related figure, result becomes more useful. And this studying one figure in relation with another related figure is called analysis. ठीक है? इसी तरह से कई कोचिंग सेंटर वाले बेवकूफ बनाते हैं स्टूडेंट्स को. कैसे? बड़ी बड़ी एड्स निकालते हैं, बैनर्स लगाते हैं, हमारे यहाँ से 100 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो गए इस इंस्टीट्यूट में, हमारे यहाँ से 80 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए. ठीक है? दूसरी जगह आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पता करते हो, वो कहते कि कितने आपके स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, वो कहते हैं जी 30 सेलेक्ट हुए हमारे. सुपर 30 मूवी देखी होगी शायद आपने, देखिए. यस सर. तो अब देखने Yes, में sir. फर्स्ट इंस्टेंस पे किसी को लगेगा कि जिसके 100 या 80 सेलेक्ट हो रहे हैं वो बेटर है. लेकिन अगर आप उनसे पूछो आपके यहाँ से पढ़े कितने स्टूडेंट्स थे, हजारों पढ़े थे, उन हजारों में से 100 या 80 सेलेक्ट हुए हैं, तो बहुत कम परसेंटेज है. 30 वाले से आप पूछते हो कितने स्टूडेंट्स पढ़े थे आपके यहाँ, वो कहते हैं 30, तो 100% सिलेक्शन है उनका. सो दिस इज द नीड फॉर एनालिसिस. तो कभी भी एब्सोल्यूट फिगर्स पे हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए. वी शुड ऑलवेज कैलकुलेट परसेंटेजेस. वी शुड एनालाइज द डेटा बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन. We stop here today for today. Any doubts, anyone? No, sir.